Welcome to my YouTube channel. We are talking about algebra expansions. As we have already studied algebra expansions in class 8, where we have studied about their addition, subtraction, multiplication and division. You have also studied some special product and expansion. Now in this chapter we shall study some more special product and expansion. Now for that we need few formulas like x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy. X minus y whole square is equals to x square plus y square minus 2xy. Same as in formula x plus y whole cube, that is equals to x cube plus y cube plus 3xy and multiply by x plus y. X minus y whole cube is equals to x cube minus y cube minus 3xy bracket x minus y. If they have given a plus b plus c is equals to 0, then we have a formula a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. Now on the basis of this we will solve few questions based on these formulas. We are talking about basically for ICSE board class 9. It is exercise 3.1 from the book which is written by ML Agarwal. So here the question is, for this they have given first question as 2x plus 7y. Here we have to do what? We have to use the standard formulas and expand the following. So we can see this, it is 2x plus 7y. So here we will use a plus b का whole square which is equals to a square plus b square plus 2ab. यहाँ पे हमारा a क्या है 2x और b क्या है हमारे पास 7y. तो हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7y. हमारे पास 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 49y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 7 ज़ा 28xy. So by this we have expanded this. We have a formula a square plus a plus b का whole square that is equals to a square plus b square plus 2ab. Next question is, this is also for expansion. It is a question number 1b part only. So 1 by 2x plus 2 by 3y का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे. बट यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1 by 2 का है 2x और b क्या है हमारे पास 2 by 3y. तो हम a स्क्वायर दैट मीन्स 1 by 2x का होल स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2 by 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 2x इंटू 2 by 3y. अब हम इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे 1 by 2 का x 1 by 2x का होल स्क्वायर. तो 1 by 2x का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1 by 4x की पावर 2, 1 by 4x की पावर 2 प्लस 2 by 3y स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 by 9y स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में है और ये 2 हमारा न्यूमरेटर में है. तो हम इन दोनों 2's को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 by 3xy. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is little bit complicated. What will we do in this question? We'll take up this as a 2 by 3x as a and whatever is left that I will take up as b, 3 by 2x and minus we have already taken as a common, so it will be plus whole square. Now we'll use the formula of a minus b whole square, that will be a square plus b square minus 2 into a, that is 2 by 3x into 3 by 2x plus 1. So we will expand this
2 by 3x whole square. So it will be 4 by 9x square plus. Now we have this as a plus b whole square. So we'll use again the formula of a plus b whole square in this. So here a is 3 by 2x and plus 1. So 3 by 2x whole square plus 1 square plus 2 into 3 by 2x into 1. This will be a formula for this. It is a plus b whole square. So we have expanded, and rest the things we'll write down as it is. 2 into 2 by 3x and bracket is 3 by 2x minus 1. So we'll open this bracket. What will we get it here? 3 by 2x whole square will be 9 by 4x square plus 1 plus it is 2 into 3, but here 2 and 2 are in, will cancel it here because 1 2 is in numerator and another is in denominator. It will comes 3 by x minus 4 by 3x into 3 by 2x minus 1. Now it is plus 1, sorry, here it is plus 1, so we'll put it here plus 1. Now we'll open last bracket also. So it is 9 by 4x square plus 1 minus 3 by x minus 4 by 3x into 3 by 2x. Now this 4 by 3x multiplied with by both the terms a and b. So we'll multiply first when we are multiplying by 3 by 2x, and now minus plus is minus 4 by 3x into 1. So it will remain same. So here we can see this 3 will cancel with this 3, and 2 1s are 2, and this is 2 2s are 4, and even x will also cancelled out here. So we'll get here 4 by 9x square plus 9 by 4x square plus 1 minus plus 3 by x plus 3 by x minus 2 minus 4 by 3x. Now we'll see it here, it is minus 2 and plus 1. So minus 2 plus 1 will be minus 1. So this question is solved. We have got as answer 4 by 9x square plus 9 by 4x square plus 3 by x minus 4 by 3x minus 1 as answer. Thank you. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 1 बाय 3 का होल क्यूब. अब हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब. तो हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट इज a प्लस b. अब हम क्या करेंगे, इसको 3x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब फॉर्मूला को इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. तो a क्या है हमारा यहाँ पे 3a और b क्या है हमारा 1 बाय एक्स. तो a क्यूब 3 बाय एक्स का होल क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 बाय एक्स. a प्लस b means 3x plus 1 by x. Now what will we do? We'll simplify it. Okay, so 3 का cube everyone knows, you have already learned in class 8. So it will be 27x cube plus 1 by x cube. Here we will see this. Now here what will we are seeing? This x will be cut with this x, so it becomes plus 9 एंड ब्रैकेट में हमारे पास है 3x प्लस 1 बाय एक्स. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 27x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 9 के साथ हम दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट में अंदर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 इंटू 3 इज़ 27x प्लस 9 बाय एक्स. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a प्लस 1 बाय ए. अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. a प्लस 1 बाय ए का
होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 into a into 1/a. दिस इज़ माई फर्स्ट ब्रैकेट बिकॉज वी हैव एक्सपेंडेड दिस. अब हमारे पास सेकेंड में क्या है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर. तो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a. तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये इट इज़ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास a और a कैंसिल हो जाएगा बिकॉज क्या है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2. हमें इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने इसके बाद a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2. here also this a and this a will cut, we will cut it and we'll get here 2. अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है प्लस, तो हम इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2. दिस इज़ प्लस सो इट विल नॉट इफेक्ट आवर ब्रैकेट. जो भी हमारी ब्रैकेट में हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे. ठीक है. अब हमारे पास देखो ये -2 है, ये +2 है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0. यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/a स्क्वायर. और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में हम ब्रैकेट से बाहर हम 2 इज़ कॉमन हियर, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे. हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 48xy. अब हमें क्या करना है, इसमें हम फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे. अब हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर. सो इट इज़ a इज़ 4x and b इज़ 3y. सो हियर 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3y. सो दिस इज़ फर्स्ट ब्रैकेट. नाउ यहाँ हमारे पास है माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y माइनस 48xy. तो अब 4x का होल स्क्वायर it will become 16x square plus 9y square plus 2 4s are 8, 8 3s are 24, 24xy. यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे. 16x square plus 9y square माइनस 24xy माइनस 48xy. अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy. जब हम माइनस के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर xy एंड माइनस 48xy. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्लस का 16x स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो इट विल बिकम 0. 9y स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का 9y स्क्वायर है, यहाँ माइनस का है, तो ये भी 0 बन जाएगा. अब हमारे पास क्या बचेगा, 24xy प्लस 24xy माइनस 48xy. तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 48xy माइनस 48xy. तो हम इन दोनों को देखें तो ये भी दोनों सेम नंबर हैं, तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो विल गेट 0 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर सिंप्लीफिकेशन. इट इज़ x माइनस 3/x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 9/x. अब हम क्या करेंगे, x से पहले पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो x क्यूब. इसके बाद x इंटू 3, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, x को लिखें और इसमें ब्रैकेट में पूरी इस ब्रैकेट को कॉपी कर लें पहले.
माइनस 3/x और इसको भी कॉपी कर लें यहाँ पर x² प्लस 3 प्लस 9/x², क्योंकि ये जो है ये हमारे पास है, या तो हम इसके सभी नंबर्स को और वेरिएबल्स को इनसे दोनों से मल्टीप्लाई करें, या फिर हमें x को लेके इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे माइनस 3/x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी ब्रैकेट के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाएंगे x इंटू x² विल बी x³ प्लस 3 इंटू x इज 3x प्लस 9 इंटू x एंड डिवाइडेड बाय x²। तो दिस x विल बी कैंसल्ड विद दिस स्क्वायर। x² का मतलब होता है 2 टाइम्स मीन्स x इंटू x। तो x² का जब हम x इंटू x होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक x को इस x से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे है 3/x इंटू x²। अब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है, तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9/x एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, तो इट विल 9 3 ज़ा 27 एंड डिवाइडेड बाय x³। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ये x है ये भी एक x से कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर x³ प्लस 3x प्लस 9/x माइनस 3x माइनस 9/x and minus 27/x³। Now you can see 3x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, it will become 0. This 9/x and minus 9/x, this will also become 0. So we are getting x³ minus 27/x³. So here we have derived the formula again. ये देखो यहाँ पे हमारे पास मिला क्या, हमें a³ माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ अगर हम करें तो दिस इज 3/x का होल क्यूब। सो वी कैन से दैट x माइनस यहाँ पे a माइनस बी इंटू a² प्लस, बस क्वेश्चन है इफ a² प्लस 4x प्लस x इज इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास है a² प्लस 4x प्लस x इज इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a प्लस 2 का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा a² प्लस 4x प्लस 4a प्लस x इज इक्वल्स टू a² प्लस 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, सो इट विल बी 4a। तो यहाँ पे a² प्लस 4a प्लस x इज इक्वल्स टू a² प्लस 4 प्लस 4a। तो this will be cancel out with this and 4a is cancelled out with this. So what will we get here, x is equals to 4. So the value of x is 4. Next question is use a plus b whole square is equals to a² plus b square plus 2ab. We have to find out the value of 1003 का होल स्क्वायर। अब हम इस नंबर को स्प्लिट कब करेंगे a प्लस b में, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर। वी कैन राइट डाउन 1003 एज 1000 प्लस 3 इट्स होल स्क्वायर। नाउ अब हमें फॉर्मूला लगाना है, वी हैव टू यूज़ फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। सो हमारा a क्या है 1000 का होल स्क्वायर प्लस b इज़ 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आएगा 1000 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, इट विल बी 10 लाख प्लस 9 प्लस 2 3 is 6, 6 into 1000 is 6000. Okay, now we'll add it. What will you get here, 10 lakh 6009. This is our final answer for this question. The same thing we will do for use the identity a minus b whole square is equals to a² minus 2ab plus b square, and we have to find out the value of 997 का होल स्क्वायर। तो what will we do, अब हमें माइनस में करना है
क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी है, a माइनस बी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 1000 माइनस 3, we'll take up like this. Now 1000 minus 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा 10 lakhs प्लस 9 minus 6000. So we'll add 9 in it. 10 lakh 9 minus 6000. So when we are subtracting, what will we get here? 9 0 0. 10 minus 6 is 4, 9 9. So our answer will be 9,94,009. Next question is, we have to prove that we have to find out the value of, if they have given a plus b plus c is equals to 0, then find the value of a square divided by bc plus b square divided by ca plus c square divided by ab. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, ए, तो दैट विल बी, विल डिवाइडेड दिस बाय दिस, तो ए बी सी इज डिवाइडेड बाय बी सी, सो विल लेफ्ट विद ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, सो इट विल बी ए क्यूब प्लस here also we'll do same thing, CA के साथ हम ABC को डिवाइड करेंगे CA से, तो हमारे पास क्या बचेगा B, तो B मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर, सो इट विल कम B क्यूब एंड here विल बी C क्यूब, बिकॉज जब हम LCM लेते हैं जो हमारे पास आंसर आता है डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करेंगे, जो लेफ्ट होगा जो हमारा क्वेश्चन आएगा उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आया ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3ab, तो c, एंड हमारे डिनोमिनेटर में क्या है a b c, तो व्हाट विल हैपन हियर, a b c विल कट विद a b c एंड वी विल लेफ्ट विद हियर, वी विल लेफ्ट और वी विल गेट द आंसर एज 3. Next question is, if x plus y is equals to 4, find the value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64. So हमें क्या करना है, हमें अब इन्होंने हमें क्या दिया है, हमारे पास है x plus y, x plus y जो है हमें 4 दिया है, और हमें क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, तो दैट मीन्स हमें क्यूब में चाहिए, आंसर जो है क्यूब में चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड क्यूब कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड राइट हैंड साइड विल डू द क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। अब हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब एक्स क्यूब, मीन्स विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, तो दैट विल बी 64. अब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, बट यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4, तो हम क्या करेंगे 3xy और हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो व्हाट विल वी गेट हियर, 64 इज इन, it is equals to 64 because we have done the cube of 4, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इज 12xy, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 64, तो हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी, हमें फाइंड आउट करनी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, तो हमें इतना जो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 12xy है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 64, तो 64 माइनस 64 इज 0. सो हियर वी आर गेटिंग 64 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0. तो I think you are clear with all the concept of this exercise. और मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. और if you have any doubt you can ask me or comment me in the chat box, or you can comment me after this video. I hope you like this video. So thank you and bye bye. Please like and subscribe my channel.